ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਸਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਦਿਓਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਰੇਪ ਰੁਕ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। क्या महिला ही महिला की दुश्मन बन गई है? आज महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी के पास लोक अदालत में जितने भी केस आए उसमें किसी की पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया था कि वह दूसरी महिला से प्यार करने लगा था, तो किसी ने इसलिए अपनी विवाहिता को घर से निकाल दिया था कि वो कम दहेज लाई है। कुछ युवक अपनी पत्नियों से भी परेशान दिखे। कुल मिलाकर पंजाब में 30,000 डोमेस्टिक वायलेंस के केस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस बारे में महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी का क्या कहना है और लोगों की क्या शिकायत है। अमृतसर पुलिस लाइन में आज लोक अदालत लगी है। पंजाब वुमेन जो चेयरपर्सन हैं आज मनीषा गुलाटी वहाँ यहाँ पर आई हुई हैं हमारे साथ। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या ये अपनी परेशानियाँ लेकर आए। की नाम थोड़ा? ਮਨਪ੍ਰੀਤ। कदों शादी हुई सी? अप्रैल 'ਚ। ये देखिए अभी हाथों में चूड़ा भी नहीं उतरा है और इनको कुछ परेशानी है, इनसे बात करते हैं। अप्रैल शादी हुई ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਡਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਖਾਸੇ ਪਿੰਡ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਸੱਸੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। देखिए अभी चूड़ा नहीं उतरा है तो इसकी शिकायत है कि ये गर्भवती थी और इसके साथ मारपीट की गई और जिससे इनका गर्भपात हो गया। ये भी इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। हम और भी बात करते हैं कुछ लोगों के साथ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ 2 ਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੀਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਦਿਓਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਜਸਮੀਤ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आया, ना ने मकान बना के देता है। ये देखिए, 27 हुई महिला हैं, कहती हैं इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी है 17-18 साल की हो चुकी है, 20 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। पति ने दूसरी शादी कर ली है और इनसे मारपीट की जा रही है। ये इंसाफ लेने के लिए आज महिला आयोग के पास आई हैं।
हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं जो इंसाफ लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक गांव से लड़की है, इनका थोड़ा ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਹੁਰੇ ਨਿੱਜਰਪੁਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, कुलवंत सिंह, उनसे बात करते हैं। कितों आए हो कुलवंत जी? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆਏ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੋ ਆ ਗੱਲ। ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਹੁਰੇ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਇੱਕ। ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ? ਵਿੱਚ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ है? ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਰਾ कुछ। देखिए, ये कहना है कि पति की इसके जो लड़की है इसके पति की डेथ हो चुकी है। इनका कहना है कि जो सामान ससुराल में इनका पड़ा हुआ है, जो गहना, जो कपड़ा, जो और दूसरा जो दाज में इनके परिजनों ने सामान दिया था वो वापस किया जाए, लेकिन वापस नहीं किया जा रहा, इसीलिए इन्होंने शिकायत की है। ये देखिए, लड़की है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ससुराल की ओर से तंग किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं कहाँ से आई है और क्या इंसाफ चाहिए। की नाम थोड़ा? कलजीत कौर। कित्थों आए हो? तनाए खुर्द तो। कित्थे विआह है थोड़ा? तनाए खुर्द होया खास ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੁਰੇ रह रही। ਕਿਉਂ ਪੇਕੇ ਕੋ ਆਏ ਹੋ? पेके मार कुट के इत्थे पेके ही छड्ड गया। हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? महीना हो ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਦੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, मारदा ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ 1 ਲੱਖ ਲੀਲਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇਠ ਜਠਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਾੜਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ये देखिए, ये लड़की है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अपने ससुराल वापस जाना चाहती है, लेकिन वो लेके नहीं जाना चाहते। इनकी शिकायत है कि मारपीट करते हैं। इनसे ये इंसाफ लेने के लिए यहाँ वुमेन की चेयरपर्सन के पास आई हैं। हमारे साथ हैं पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी। यहाँ आज लोक अदालत लगाई गई है जहाँ पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हैं उनका निपटारा किया जाना है। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, थोड़ा मैडम बताएंगे ये आज क्या है, कितने दिनों की ये लोक अदालत लगाई? 2 दिन की है हमारे पास 30,000 से अबव केस हैं, तो इसीलिए हमने बहुत प्रेशर था। कोविड के बाद ये हमारी पहली लोक अदालत है। हमने 5 जून की आज ये अदालत लगाई है। तो ये अगर 30,000 केस की बात करें तो ये सिर्फ पंजाब से रिलेटेड हैं? जी हाँ, पंजाब से ही। इसमें अधिक जो ज़्यादा केसेस हैं वो किस से संबंधित हैं? डोमेस्टिक वायलेंस है, मैरिटल डिस्प्यूट है, फैमिली इंटरफेरेंस है। 23 मार्च के बाद ड्यूरिंग कोविड ज़्यादा केस बढ़े हैं, तो प्रेशर बहुत है। पंजाब पुलिस पे भी बहुत प्रेशर है। नहीं, तो आपको लगता है कि जो महिला के साथ मारपीट के मामले ज़्यादा बढ़े हैं? देखिए, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस तो शुरू से ही ऐसे केसेस में होती ही है, पर ऑफ कोर्स जब फैमिली इकट्ठी होगी ड्यूरिंग कोविड, इकोनॉमी नीचे आ गई, जॉब्स चलेगी, तो जब बैलेंस नहीं हो पाया तो फैमिली में ये ऐसे मामले भी बढ़े हैं। अच्छा मैडम, आपको नहीं लगता कि इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है कई बार? देखिए, देरी का तो एक मतलब है, एक हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में के पास स्टाफ की कमी है, जिस पर काम चल रहा है। डीजीपी साहब से भी मेरी बात हो चुकी है, हमने लिखा भी है। और एक्चुअली एक काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर, ये कोविड की वजह से बहुत सारा प्रेशर था पंजाब पुलिस पे, जो इस तरफ काम नहीं हो सका, क्योंकि सारी फोर्स लोगों की जान बचाने में लगी हुई थी, जो कि बहुत ही ये सबसे बड़ा काम था, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर अदरवाइज ऑफिशियल काउंसलर लगाने की
फील्ड में अभी काम इस पे, क्योंकि मेरी डीजीपी साहब के साथ मीटिंग होती रहती है, चल रहा है। बहुत जल्द सारे पंजाब के वुमेन सेल को ऑफिशियली काउंसलर मिल जाएंगे और स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी। तो जो महिला थाने बनाए गए थे बेसिकली ताकि ये डिस्प्यूट के मामले वहीं पर सॉल्व हो जाएं, ये क्या कारण है कि वहाँ पर ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आज ये सब लोग रिपोर्ट लेके आए हैं। कई बारी एक्चुअली इन्फ्लुएंस फैमिली का जो बढ़ जाता है, अड़ियल ईगो क्लैश कर जाती है कि अब हम तो करना ही नहीं। हमारे पास भी आज 1-2 केस ऐसे आए हैं, मन बना के हैं जी अपा तो करना ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब मामलों में भी राजनीति कहीं ना कहीं भारी है? देखिए, ये हमारे ऑफिसर उम्दा ऑफिसर है, जो राजनीतिक अगर प्रेशर होता भी है तो ये अपने सीनियर को आगे भेज देते हैं। तो इनकी कोशिश यही होती है, जो अच्छे सारे ये अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी फैमिली से हैं, नहीं प्रेशर लेते। पर कई बारी अगर कोई गलत है, कोई गलत कंप्लेंट आ गई है तो सुनना भी पड़ता है। तो ये इनको आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ हर चीज़ में राजनीति आ जाती है, तो इसमें कहाँ तक राजनीति है? मैंने राजनीति की बात की है मुद्दों पे, सरकार के जो मुद्दे हैं। मैंने पंजाब पुलिस के जो औरत से जुड़े मुद्दे हैं उन पे नहीं बोला। उन पे मैं यही, आपका सवाल यही था कि राजनीति इस मामले में इनके ऊपर प्रेशर रहता है। नहीं, पढ़े लिखे उम्दा ऑफिसर हैं, इनके भी आगे सीनियर हैं, इनकी रिपोर्ट जाती है। तो नहीं, ऐसी अगर ऐसा हो तो हमारे पास तो हम तो मैनेज ही ना कर पाए चीज़ों को। तमाम सरकारें बात करती हैं महिला एम्पावरमेंट की। देखिए, महिलाओं के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है, लेकिन आप देखिए ये सभी महिलाएं पार्षद बनने के बाद रबड़ स्टैंप की तरह यूज़ की जाती हैं। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि पार्षद बन जाती हैं पर घर से निकलती नहीं है। कम है अमृतसर में कुछ पढ़ी लिखी हैं, कर रही हैं काम, अच्छा कर रही हैं। हमारी पंजाब महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है ममता दत्ता, काउंसलर भी हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा वो सवाल है जी, जहाँ पर वो रबड़ स्टैंप की तरह यूज़ किया जाता है, उनके लिए आप क्या है? उनके लिए मैं यही कहूँगी, अगर या तो करो ना, अगर बने हो तो काम करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और लोगों को आपकी जवाबदेही बनती है। तो हमारी एक मंत्री भी हैं जी, वो अपने पति को साथ ले जाती थी। मैं नहीं, इस पे ये दिस इज ए पॉलिटिकल आपका ये क्वेश्चन है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं आपको क्या लगता है इस कानून का जो ये महिलाओं के लिए बनाया, इसका मिसयूज़ भी हो रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर कि लड़कियां कई बार मिसयूज कर लेती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और कमीशन भी इंक्वायरी करता है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो 182 के तहत कार्रवाई होती है। आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? यही कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का आज की लड़कियों को, लेडीज़ को पता होना चाहिए और जुल्म को नहीं सहना चाहिए। अगर आप आवाज़ उठाओगी तो पुलिस डिपार्टमेंट या कमीशन तक पहुंचोगे। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाओगी, जुल्म सहोगी, जो कि अपने आप में ही एक जुर्म है। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने ये थी महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं को किसी का भी दबाव नहीं सहना है और अपने जो इनके लिए कानून बनाए गए हैं उनका इन्हें पता होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल। ये भी कहती हैं जो महिलाएं रबर स्टैंप की तरह पर यूज़ हो रही हैं वो अपने अधिकारों को पहचानें। उनके लिए सरकार ने विशेष तौर पर कानून बनाया है, इसीलिए उन्हें उन राजनीति में उन्हें आरक्षण दिया गया, चाहे वो निगम के इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो। अगर वो चुनकर आती हैं तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, वो खुद अपना काम करें, ना कि अपने बेटे या अपने पतियों को अपने अधिकार सौंप दें। इनका ये भी कहना है कि इस जो है ये लोक अदालत लगाई गई है, इसमें काफ़ी अधिक से अधिक केसों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।